पड़ेगा मुझे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत भाई साहब। So shall I wait or I think I should start? Yeah, start please. Okay friends, very good afternoon everyone. Good afternoon, sir. Okay, I'm Asad Good Khan. afternoon, sir. Good afternoon. I'm Asad Khan, Professor of Biotechnology in this university, and I have been given this task to talk on the publication quality publication. That's a very vast topic, and I don't have any slide with me or anything to kind of show you the presentation kind of a thing. But I think I will. It's kind of a more of interactive session, and we'll try to interact with you as the teachers and the faculty members of your different departments or different area, and discuss why and how publication can be improved and what is the significance of publications and how can you improve the quality of publications, right? And what are the different journals and categories of journals where you can publish and you can show yourself, showcase as a good researcher and a good worker in your area of research. Doesn't matter in which area you are working, whether it is a science and technology or arts and humanities or any other branch. Then we'll talk on the impact factors. We'll talk on citation. Then we'll talk on value of impact and how impact factor is being calculated. Not exactly mathematically, but what are the basically factors on which the impact factor is based on, and you are happy that you publish in this impact and that impact. Well, it's kind of could be a very haphazard lecture, but I think you can get some information and gather it, jot it down somewhere for your future. So let me start from the question, why publication is important. Let me make it more organized in that way. Why publications are important. Now, publications are of different kinds. It could be research paper, it could be review article, meta-analysis, manuscript, it could be book, edited book, textbook, right? Or any editorial letter published in journals or dailies or magazine or anywhere. Anything which is published through some press is called publication. Now, what is the content of the publication to be accepted? Now, if you are having something published, it means it need to be reviewed first. So this is the very important thing. I think it will help you out also to understand where to publish. My next question. So let me first complete why to publish. So because whatever you have in your mind, right, or you have in your as your thoughts, or you have some material generated through some data, survey data, experimental data, theoretical data, right, are secondary data on which the reviews are based. Then that data or that information which you gathered through certain sources, right? Source may be some published book, maybe articles, maybe some experiments data. We call it real-time data. And this information that you gathered need to be displayed if it has significance. Now, the question is if it has significance. You can't publish any damn thing anywhere. I would not name any dailies. I would not name any newspaper. But there are newspapers which publish any damn thing. Although it has nothing to do with what we are talking about today on publication. We are talking about the academic writing publication. We are not talking about the news publication. Although it is also part of publication because news published in newspaper. So there are many newspapers which publish like any damn thing. कहता था वो हमारे घर के सामने से एक रिक्शा जा रहा था, उसका पहिया निकल गया. And that is news in some newspaper. And 2 लोग घायल हो गए. So this kind of a news
I'm not criticizing any newspaper. I'm not criticizing any publisher, but I'm trying to make you the significance and the impact of that news on the society. क्या आपको लगता है कि एक रिक्शा सामने से जा रहा है, उसका पहिया निकल गया और 2 लोग घायल हो गए, डज इट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी? या एक न्यूज ये आती है कि साहब केरला में या साउथ में एक एंडेमिक स्टार्ट हुआ है, जो डिजीज जो है वो यूपी या दिल्ली में आ सकती है, एंड शुड बी वेरी केयरफुल, अलर्ट. So which news is important? I think the second news is important because in second news it impact the society majorly. उसका सोसाइटी पे, एक हमारे इलाके में, एक कम्युनिटी में इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग तैयारी कर लेंगे तो विल बी रेडी, prepared for this that pandemic or that COVID or whatever. And if you're not prepared, then we'll be sufferer. So let's see what is the, मैं बहुत बेसिक चीजें से लेके जा रहा हूँ. I'm not talking about the very high rocket science, right? So let's understand what is the significance of publication. Why to publish and where to publish, and does this publication really need to be published? हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, रिसर्च लैब कराते हैं, प्रोजेक्ट कराया, थीसिस कराई, एंड भी कहते हैं यार आर्टिकल लिखो. स्टूडेंट से कहते हैं यार चलो ये बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, पब्लिश करते हैं. हमने एक जगह भेजा रिजेक्ट, दूसरी जगह भेजा रिजेक्ट, कहीं ना कहीं वो पे कर आके वो छप जाता है. और हो सकता है वो यूजीसी केयर जर्नल भी हो. मैं उस बात इसमें मैं बाद में आऊंगा, what is the role of UGC care journals and does it has really significance for the research quality or not? That's a big question mark. But it published. So any publication, damn publication which has no value is of useless for academic researchers or academicians. Publication is always peer reviewed. If agar publication peer reviewed में जा रहा है, then it may have or it may have some significance. अगर peer review नहीं हुआ तो वो publication कोई भी न्यूज जो है वो छप जाती है. इवन देयर आर मेनी न्यूज़पेपर विच पीयर रिव्यू. आपने कोई आर्टिकल लेकर किसी न्यूज़पेपर में भेजा, इट्स नॉट इजी टू पब्लिश इन इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स और डेली और हेराल्ड. It's very difficult to get published and to convince the editor, yeah, it need to be published until unless it has very important significant role in the society. So peer reviewing is another process of publication where the publication, whether it need to be published or not to be published. So this is done by the peer reviewers before it goes to the editor. Again, I am repeating my question, why to publish. So publication जो है वो इसलिए जरूरी है, जो information आपने gather की है, that information to be disseminated. For example, आपने एक चीज discover की, maybe you are working in the area of history and you discovered that such and such area in some region of the country or in the world was not known earlier, but now it has been known, and it is known that who was the peoples who used to live. So a new civilization's information is discovered. अब ठीक है, हिस्ट्री में उसका फ्यूचर में कोई इम्पैक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन बट एज ए हिस्ट्री द इंफॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट टू लर्न हमारे 100 साल पहले या 200 साल पहले यहाँ कौन था, ये किसकी जगह थी, ये किसका एरिया था, ये कौन सी सिविलाइजेशन यहाँ थी, उसके कल्चर क्या था, लैंग्वेज क्या थी, स्क्रिप्ट क्या थी. तो दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन टू बी गैदर्ड एज अ बेसिक information. So this is kind of a research. So once you got all these information, then you need to be publish it so that पूरी दुनिया को पता चले कि साहब फना रीजन में एक नई कोई बिल्डिंग, नई कोई फोर्ट, कोई रजवाड़ा कोई निकला है जो फना राजा का था या फना बादशाह का था, और वहाँ ये लैंग्वेज चलती थी, इतने साल पुराना है वो, and so on so forth. So all the information which you gathered in a form of some material is need to be published in somewhere. So you have to find out some journal which is the best journal, fit journal where you can. अब ज़ाहिर है हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन आपने गैदर की है, वो किसी लैंग्वेज के जर्नल में तो नहीं छपेगी, राइट? तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन कम, वेयर टू पब्लिश. आप कहाँ छापेंगे उसको, ना? अगर वो इंपॉर्टेंट है and peer reviewed and reviewers approved it to be published after some modification or editing or changes, revision, then
You have to publish. So where to publish? This is again a big question, where to publish. Sometimes many people's, now I'm coming to the area of science, because science में very prolific publications आजकल हो रहे हैं. Everybody is publishing like every month or years, number of papers, just to increase the API score and to be promoted. हालांकि API score का प्रमोशन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, मैं ऐसे सोचता हूँ. I don't consider API score is important to be promoted. Your promotion should be based on your quality research and based on your credentials and based on your new teaching pedagogy and all, if you are in college teacher, rather than just like API score. Anybody can make API score by publishing one-page letter in number of papers, and you got highest marks because you are a single author and only author, so you get full marks. No distribution of marks among the co-authors until unless you have experimental research, high quality research, where you need to have a large number of authors required, so the number is reduced. And that is the main reason of API score is deteriorating the quality of research, at least in the university. And of course, colleges is also a victim of it. And now, in one meeting, I was told that even the UGC chairman, Professor Jagdish Kumar, he has realized that API score is not a good for research quality. हो सकता है, who knows, the changes are going on. Who knows, in next few years, API may be abolished. You have some other criteria. Just like a NAC binary system has come now. NAC A+, A++, A+ has been gone. Now you have binary system of NAC accreditation. Either you are accredited or you are non-accredited college. The system has to be implemented in next cycle, I hope. I mean, it has been approved, or it is in process of approval rather. So things are changing. So you should know what is the way to publish. आपको कहाँ छापना है. Now, when you talk about the publication, then you always think of impact factor, right? And impact factor is something which I think, to me also, is no use. Now you can ask why impact factor is of no use. देखिए, मैं थोड़ा सा डिफरेंट बात कर रहा हूँ आप लोगों से. आपको लग रहा होगा ये पता नहीं थोड़ा स्ट्रीम से हट के बात कर रहा है. Of course, I'm talking slightly away from the stream, but I'm not in the mainstream. The reason, impact factor means like you are publishing in high impact, means you are publishing in a journal where this journal paper published in that journal are cited maximally. So citation जो है उन papers का ज्यादा है जो उस जर्नल में छपे हैं. इससे क्या होगा, इस जर्नल का साइटेशन बढ़ेगा, और जब जर्नल का साइटेशन बढ़ेगा तो जर्नल का इम्पैक्ट बढ़ेगा. राइट. सो ये तो रहा इम्पैक्ट बढ़ाने की तरकीब. अब इसके बहुत सारे साइड ट्रिक्स हैं. आप एडिटर क्या करता है, कभी कभी आपसे मांगता है, ठीक है आप कम से कम 4-5 पेपर आप डालिए जो इसी जर्नल में छपे हुए हों. सो दैट इज नॉट, it's totally unethical, and sometimes it has been caught and people have been debarred from the journal. कभी कभी ये भी होता है. ये बिल्कुल राइट नहीं है आपको एज एडिटर आप ये कहें कि साहब इस जर्नल में आप छापिए तो इस जर्नल के रेफरेंसेस होना चाहिए इस पेपर में. नहीं, you have no right. Even you have no right, no ethical right, being as a reviewer, which is confidential. Your name is not disclosed generally if it is not published. If it is published in many journals, it has been disclosed. So you are safe anyway. So you have no right, ethical right, to ask the author that to add these references, that is your references. जैसे मान ली मैं बायोफिल्म पे काम करता हूँ, ड्रग रेजिस्टेंस पे काम करता हूँ, मेरे पास पेपर आते हैं रिव्यू के लिए, तो मैं उसको लिखूं कि यार इसमें ये पेपर नहीं डाला, ये नहीं डाला. हाँ, अनटिल अनलेस के कोई बहुत इंपॉर्टेंट पेपर ऐसा हो जिसे आपको लगता है कि नहीं यार दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर एंड इट नीड टू बी साइटेड. बट डोंट आस्क author as a reviewer that to cite
these papers because these are my paper, so my citation will be increased. No, this business is totally flawed, and people do that, and by that they increase the citation. Similarly, by that the editors increase the citations of the journals, and so the impact goes up, right? So these are some tricks where people are. So अब आप मुझे ये बताइए impact इस तरीके से बढ़ रहा है. So these are the tricks of increasing impact. What is the impact of your research on the society? What is the impact of your research in your own field? Suppose आपने किसी जर्नल में छापा, उसका impact बहुत ज़्यादा है, but that research does not make any sense, does not make any impact on the society or even in your own field. जैसे मैं बायोफिल्म पे काम करता हूँ, मैंने पेपर छाप दिया, नेचर में छाप दिया. अब नेचर की एग्जाम्पल मैंने गलत ली बिकॉज नेचर इज द टॉप प्राइस जर्नल, और किसी जर्नल में छापा जिसका इम्पैक्ट ज्यादा है, बट that study is not so significant that it impact the completely change over the whole facelift the whole area of biofilm. तो ऐसी डिस्कवरी नहीं है वो, but it got published in some good journal, it doesn't matter. So मेरा कहने का मतलब यह है कि our focus should be primarily not on impact, I'm repeating, our focus primarily on not on impact but on the quality work. फिर आप पूछेंगे कि साहब क्वालिटी वर्क से क्या मतलब है, ये इम्पैक्ट पे क्यों नहीं करें? देखिए, आप इसको ऐसे देखें कि व्हेन यू परफॉर्म द टारगेटेड फोकस्ड क्वालिटी वर्क, तब मुझे ये काम करना है, आई हैव टू डेवलप दिस ड्रग एंड ब्रिंग इट टू द मार्केट, दिस इज योर टारगेट, एंड यू समहाउ ब्रॉट इट टू द मार्केट इन 10 years or 50 years. पेटेंट कराया आपने, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, आपने अप्रूवल लिया, ट्रायल किया, एंड एट द एंड यू विल गॉट दिस डन, यू आर सक्सेसफुल पर्सन. ठीक है, आपका पेपर कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ होगा, बट नाउ इफ यू कंपेयर द पर्सन हु इज पब्लिशिंग पेपर एंड हु इज ब्रिंग द टेक्नोलॉजी इनटू द मार्केट, हु इज ऑन अपर हैंड? Definitely the one who is bringing the technology on the market. And that is also the focus of the government now. Try to understand, the main focus of the current government is to bring your research in the market. हम उसको ऐसे लेते हैं कि साहब गवर्नमेंट जो है हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को बिजनेस हब बनाना चाह रही है. I mean, this is what our comment. Government don't want, I'm not favoring the government, I'm not anti the government, I'm just talking in terms of like a research and science. I'm a scientist, I'm not a politician person. But what I'm trying to extract the concern and reason of that if you're not able to disseminate your knowledge, technology and research to the market, because market, I'm saying again and again, because market से society, market is connected है. आपने कोई दवा बनाई है तो वो मार्केट ही में तो आएगी, आपने कोई टेक्नोलॉजी डिस्कवर करी तो वो मार्केट ही में तो आएगी, तभी तो लोगों के पास पहुंचेगी वो. आप डायरेक्ट घर घर जाके तो नहीं उसको सेल करेंगे, या घर घर जाके तो नहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे. टेक्नोलॉजी इधर ट्रांसफर टू कंपनी एंड कंपनी अगेन थ्रू मार्केट टू द पीपल. आर technology is coming to the market directly by you as inventor, and it get be giving the benefit to the society, to the people of the country or of the world. तो वो ज्यादा बेटर है. ठीक है, out of 100 maybe 8% या out of 1,000 0.1% maybe end up with the technology, maybe 0.1%, not more than that. And this is the data all across the country. मैं खाली किसी एक कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा. Even I'm talking about the ISC Bangalore, one of the top premier institution of the country. Even IITs, there are very less percent of the technologies being transferred to the, and the reason is the same, that our focus is on, we are trapped in the API, we are trapped in the number of publication, we are trapped in the citation, we are trapped in the impact factor. So our main focus is not on the outcome, but our main focus is on the kind of a portrait just for the sake of you are doing research. आपकी यूनिवर्सिटी में एनुअल रिपोर्ट जाती है, आपको मालूम है प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार आपसे मांगते हैं हाउ मेनी पेपर यू पब्लिश इन 1 year. आप लिख के भेजते हो 1 पेपर छापा, कोई लिख के भेजा 10 पेपर छापे.
तो आपको लगता है यार एक आदमी तो 10 पेपर छाप रहा है और आपने एक छापा, तो देयर इज अ बिग डिफरेंस। अगले साल आप क्या करोगे? आप भी 10 छापोगे, आप भी उसी रेस में आ जाओगे। यू ट्राई टू पब्लिश लाइक एनी डैम थिंग, any half a story, full story, half baked story, and incomplete stories. You keep publishing, and you have generated. You have become like a publishing press. That has no value to the research, and that is the main reason that India is going lag behind in the research. देखिए, इंडिया में आज की डेट में भी जो रिसर्च इम्पैक्ट मेजर किया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली ये इट इज बीइंग मेजर्ड। देखिए, मैं बात जो है वो बिल्कुल फैक्ट कह रहा हूं, नेवर माइंड इट। आज की डेट में भी जो मेजरमेंट पैरामीटर्स हैं, मैं दावे से कह सकता हूं इस बात को विद ग्रेट सर्टेनिटी, एंड आई कैन से in front of any authority of the country or any authority of the scientific community or the UGC or education ministry, that the criteria is not good. Ask me what is the criteria. I will tell you. आप मुझे अपना एडवाइजर बनाइए. Just make me a scientific advisor of your scientific research committee for the country. I'll tell you. I have a mantras. Have to improve. But this is not a criteria. What happened? Everybody is like publishing. So what you are measuring? India has published 1 lakh paper and China has published 1.5 lakh paper. What does it mean? So, I mean, basically it does not have any impact. Number of publication, number of citations, number of PhD awarded. So these are the parameters that is being measured as the matrices for evaluation. It's not correct. It's not going to impact over a period of time. What is going to impact is basically your quality focused research work, which may lead to the Nobel Prize. देखिए, मैंने यहाँ थोड़ी सी बात, it's too early to talk about the Nobel Prize at this stage. Nobel Prize is kind of now has become a political game, because the many Nobel Prize now which is being given, if you compare the Nobel Prize in more than a decade or 2 decades ago, it's a big difference. The discoveries and technologies on which the Nobel Prizes are giving now and given earlier is a big difference. You can find it out. 4 दिन की रिसर्च पे आपने नोबेल प्राइज दे दिया. It's not tested at all. COVID-19 पे. I'm not saying it's wrong or right. I have no right to say it, but I can express my views as a scientist, as an expert. So what is the significance of that work over a period of time, maybe in 10 years or 20 years? So क्या आपकी रिसर्च में कोई ऐसी चीज आपने डेवलप की? देखिए, रिसर्च में कोई जरूरी नहीं कि आप कोई प्रोडक्ट बनाए. जैसे आपने ये प्रोडक्ट बना लिया, ये से पेन बना लिया, या आपने मोबाइल बना लिया, आपने कहा ये नई डिस्कवरी हो गई. ऐसा नहीं है. रिसर्च कैन ऑल्सो बी नॉलेज डिसेमिनेशन. Does your knowledge disseminated will help others to change their life, to change their lifestyle, to change the culture, to anything can be done. So research is, I'm talking in general. I'm not talking about specifically biochemistry, biotechnology, medicine, engineering, science, and no. I'm talking about, because I know all of you are from different disciplines. Arts, humanities के भी लोग होंगे इसके अंदर, social science के भी होंगे, languages के भी होंगे. तो I'm talking in general. ठीक है, कहीं इसका impact ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, but I think most of the disciplines, what I'm saying is correct. अब आपने जो है वो क्वालिटी रिसर्च जो है वो की बात करते हैं आप, और आपने रिसर्च की 10 पेपर छाप दिए, साल में आपने 50 पेपर छाप दिए, और वो बहुत अच्छे जर्नल में छापे हैं. अगर आप साइंस में इम्पैक्ट की बात करते हैं तो 4, 5, 6 इम्पैक्ट में छापे हैं. क्या हो गया आपको छापते हैं? व्हाट इज आउटकम ऑफ दैट पेपर? हाउ मच मनी यू हैव स्पेंड ऑन दैट पेपर्स टू पब्लिश दैट पेपर? ऑफ कोर्स यू स्पेंडिंग मनी. यू आर स्पेंडिंग द ग्रांट्स गिवन टू यू थ्रू योर पब्लिक फंड्स. या उससे कोई इंफॉर्मेशन ऐसी मिल रही है हमें जो आगे ब्रेक थ्रू हो, या चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर, या लाइफस्टाइल में चेंजेस हो रहे हो, या हेल्थ साइंस में चेंजेस हो रहे हो, या एग्रीकल्चर में चेंजेस हो रहे हो? So we should focus on that kind of research where we have to give some input.
some impact, and that impact may be utilized or by the society. जिस मान लीजिए एग्रीकल्चर साइंस में लोग रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने एक नई वैरायटी बनाई जो ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी है, दैट इज इम्पैक्ट. अब डज नॉट मैटर वेदर दे पब्लिश इन नेचर और दे पब्लिश, देखिए अच्छी चीज होगी वो छपेगी अच्छी. तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप हाई इम्पैक्ट में मत छापिए, प्लीज डोंट टेक इट दैट वे. I don't mean that you don't publish in high impact journal. You publish in high impact journal. Of course, you try with the top tier journals. You also wish to have your more citation of that work because people like that work, so they will cite it. Obviously, everybody's wishes. But your focus should not be your focus. Right? It should not be your focus. Your focus जब होगा तो आपका जो focus जो target है वो achieve नहीं हो पाएगा. आवर फोकस अगर हम ये करके चलेंगे हमें 10 इम्पैक्ट में पेपर छापना है या 5 इम्पैक्ट में पेपर छापना है, हमें पीएच एकेडमिया सिनी का एक वो है इंस्टीट्यूशन है ताइवान में, मैं वहाँ विजिटिंग फेलो रहा कुछ दिन के लिए. तो वहाँ पे आई मेट विद हायर अथॉरिटीज लाइक डायरेक्टर्स. वहाँ वाइस चांसलर होता है, उसको डायरेक्टर बोलते हैं, डायरेक्टर्स एंड डीन्स एंड अदर्स. तो उनसे डिस्कशन हुआ, वो बोले कि हमारे यहाँ पीएचडी में 7-8 साल लग जाते हैं पीएचडी करने में. तो आई सेड व्हाई? दे सेड वी हैव अ क्राइटेरिया, एटलीस्ट वी शुड हैव अ वन पेपर हैविंग 10 impact factor. Then I asked them that, and they have very less manpower from the Taiwan. They have good facility, good infrastructure. So I asked them that you are making your facilities underutilized because nobody is coming because of the fear that 10 years or 5 years, 7 years, 8 years it takes to get PhD. And wait, because publishing a targeted impact factor is not a, should not be a scientist task. Your task should be that you should disseminate something, some innovative idea that can be directly or indirectly being utilized by the society. Whether you publish in high impact or low impact, उसकी यूटिलिटी क्या है. तो हमारा टारगेट, अच्छा मैं दूसरी बात यहाँ कह दूं जस्ट टू प्लीज यू, अगर आप हाई क्वालिटी वर्क करोगे एंड यू ट्राई टू फोकस ऑन द वर्क विच इज सोसाइटल इम्पैक्ट, knowledge dissemination, product development, innovation, invention, then obviously it will be published in high impact journal. Nobody can stop you, right? So my only concern is that for those researchers, those who have started their research or those who are naive or those who are just started their career, that please don't focus on the impact, forget about the impact factor. Just wipe off the impact factor from your brain dictionary के साथ impact factor भी कोई चीज होती है. सिर्फ काम करो, आप काम करो, काम करो, काम करो, और काम इस लेवल तक पहुंचाओ अब आपको लगेगा हाँ this is the very important work and you would be able to present it before the society and before this, that this is the very important, highly significant work we have done. Then you think where to publish. अब आपको जर्नल देखना है, कोर जर्नल्स कौन से हैं उसके, देन वहां आप अप्रोच करिए, एक जगह भेजिए, वहां से रिजेक्ट होता है, दूसरी जगह भेजिए, वहां से होता है, तीसरी जगह भेजिए, बट योर वर्क शुड बी प्लेस इन द कोर जर्नल. व्हाट इज द कोर मींस? जैसे मान लीजिए मैं AMR पे काम करता हूँ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे काम करता हूँ, तो मेरे कोर जर्नल्स जो हैं वो मुझे मालूम है कौन से कोर जर्नल है जिसमें सिर्फ AMR पे काम होता है, AMR पे पेपर छपते हैं. अब मैंने बजाय AMR पे छापने के मैंने क्या किया, मैंने कहा साहब इससे प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री में छाप देता हूँ, छप गया. तो मेरी जो पब्लिसिटी होगी, जो साइटेशन होगा, वो प्रोटीन बायो साइंस में इतना मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां वो लोग अप्रोच करेंगे जो प्रोटीन साइंस के होंगे ज्यादातर. ठीक है, आप ये भी कह सकते हो साहब वहां छपा कैसे, जब उसका स्कोप नहीं है. तो अब जर्नल्स के स्कोप बहुत ब्रॉड होते हैं. ऐसा नहीं कि साहब प्रोटीन साइंस का है तो वहां ये नहीं छपेगा. अब बहुत ब्रॉड स्कोप लेते हैं जर्नल्स, और वो फॉर मेनी रीजंस, फॉर रीजन दैट फॉर बिजनेस रीजन आल्सो एंड फॉर साइटेशन रीजन ऑफ कोर्स. तो इसीलिए जो फोकस्ड कोर जर्नल्स होते हैं उनके इम्पैक्ट हमेशा कम होंगे. आप नोट कर लीजिए इस बात को. फोकस को मैं डिफाइन और ज्यादा नहीं कर सकता. आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट द फोकस मींस, एंड कोर जर्नल मींस कोर उस आपकी फील्ड का. जैसे अगर आप किसी मैंडिबियल हिस्ट्री पे काम करते हैं,
तो उसका कोर जर्नल कुछ होगा जो जो जहां पे उसी से रिलेटेड पेपर छपते हैं, दैट्स कॉल्ड कोर जर्नल। सो कोर जर्नल में आपकी पब्लिसिटी ज्यादा होगी, साइटेशन ज्यादा होगा, आपका आपका रिकॉग्निशन ज्यादा होगा। कोर जर्नल से सामने से फायदा है। इसलिए वी शुड फोकस सॉरी। तो वी शुड फोकस ऑन द कोर जर्नल्स, राइट। कोर जर्नल में जब छपेगा जब आप उस फील्ड में क्वालिटी वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा कहाँ छापना है और क्यों छापना है, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट द what is the significance of the impact factor, right? Why impact factor is also important. Impact factor is important because impact factor from journals perspective. अब मैंने वो बात अपनी खत्म कर दी कि we should focus on the quality research first and then we publish in the journal. So impact factor is basically give you an idea about the quality of the journal, right? तो जो काम क्वालिटी वर्क होगा वही काम क्वालिटी जर्नल में छपेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इफ आई टॉक अबाउट द हमारी फील्ड में बीबीए, आईजेबी, बायोकेमिस्ट्री, these are very core and second top tier journals. इसमें छापने के लिए your work should be very good. Now let me talk about the how to improve the quality of the research. So to publish in high quality journal, right? High quality journals are measured by two ways. One is impact factor and second is Q1 and Q2 journals, quartile 1, 2, 3, 4, 5. Now, what is the quartile means? Q1, Q2 are given indexing to the journals which are having high citation rate. What does it mean? It means उन जर्नल्स में जो पेपर्स हैं वो साइट बहुत ज्यादा होते हैं और साइट वही पेपर होगा जो पेपर अच्छा होगा। मान ली मैं एक फील्ड में काम कर रहा हूँ, एक जीन पे मैंने काम किया, अब मुझसे उससे रिलेटेड मैं रेफरेंसेस डालूंगा, वो मैं देखूंगा किस जर्नल में काम अच्छा किया हुआ है तो उस जर्नल के रेफरेंसेस में डालूंगा। सो इसका मतलब ये पता चला जो पेपर साइट होता है उस पेपर की क्वालिटी अच्छी होती है उस पेपर से जो साइट नहीं होता। तो यहाँ इंपॉर्टेंस आई साइटेशन की। अगेन मैं यहाँ फिर इस चीज को रोक के कहूंगा कि वी शुड नॉट रन आफ्टर द साइटेशन एंड जर्नल इम्पैक्ट। हमारी टास्क नहीं है ये। वी शुड नॉट बॉदर अबाउट, सपोज यू आर टॉकिंग, यू आर वर्किंग, you have just appointed and you want to work independent researcher scientist, then you should start work today without polluted your brain and your mind with the impact factor, impact number and the future citations. आजकल बड़ा क्रेज है सब, फला के साइटेशन इतने हैं, फला के साइटेशन इतने हैं, 10,000 हैं, 5,000 हैं। साइटेशन का पब्लिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। साइटेशन इज अ डिफरेंट एंटिटी। साइटेशन पब्लिकेशन के बाद होता है एंड योर क्वालिटी विल बी इंप्रूव्ड बिफोर पब्लिकेशन, ठीक है ना। सिंस यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी, so you should not think of citation, you should not think of future, you should think at present how to improve the quality. कौन कौन से पैरामीटर्स हैं क्वालिटी इंप्रूव करने के। देखिए क्वालिटी
का मतलब होता है कि कोई भी रिसर्च जब स्टार्ट होती है तो उसकी एक हाइपोथेसिस होती है। अब मैं उस पे पॉइंट पे आ रहा हूँ, कैसे पब्लिश करना है, क्या एक क्वालिटी होती है, सॉरी एक हाइपोथेसिस होती है। वो हाइपोथेसिस आपके दिमाग में कहां से आई? हाउ डिड यू गेट दिस हाइपोथेसिस? वो हाइपोथेसिस बनती है रेशनल से, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से। अगेन मैं बहुत जनरल बात कर रहा हूं, मैं अपने एरिया की बात नहीं कर रहा हूं ना, आपके समझ में नहीं आएगी। हाइपोथेसिस जनरेट होती है बैकग्राउंड से। व्हाट इज द बैकग्राउंड? आपने एक चीज का बैकग्राउंड देखा, लिटरेचर सर्च किया, इंट्रोडक्शन जिससे हम बोलते हैं, बैकग्राउंड बोलते हैं। उसके बाद आपने एक दिमाग में एक चीज सोची, बोले यार देयर इज अ गैप। तो बैकग्राउंड में जो गैप होता है, दैट गैप इज फॉर्मिंग हाइपोथेसिस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? गैप का मतलब ये होता है कि वो चीज अभी पता नहीं है हमें, राइट? जैसे आप डॉट लाइन खींचें, डॉट 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 कर दें, राइट? एक लाइन, एक तो आप पूरी लाइन खींच दीजिए, एक आपने डॉट 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 लगा दिए, कुछ डॉट दूर दूर होंगे, कुछ करीब करीब डॉट होंगे, है ना। एक लाइन खींचिए आप अपने पेपर पे, उस पर डॉट 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 बनाइए स्ट्रेट, एंड देन आई आस्क यू टू कनेक्ट द डॉट। क्या कहूँ मैं? टू कनेक्ट द डॉट। So when I say to connect the dot, it means you have to fill all these dots. मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? Because there's no response from your side, so I think. Yes, sir. You are. Yes, sir. You are. Yes, sir. You are audible. Okay, thank you. So आपने डॉट करना है और अपने कनेक्ट। तो ये डॉट जो है ना, डॉट क्या है? वो ज्यादा स्पेस क्यों या कम स्पेस क्यों जो डॉट 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 बनाया आपने? ये डॉट के बीच में जो गैप है, ये गैप क्या है? देखिए, डॉट तो हो गए आपके बैकग्राउंड, राइट? डॉट क्या हो गए? डॉट हो गए Backgrounds. background is already existing information on certain area। कोई भी एरिया, आपको कोई फोकस एरिया होगा, कोई फील्ड होगी, उसमें ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है? Okay. अब कहां तक भी आप डॉट लगा लेंगे, ये आपके ऊपर है। आप कहां तक लिटरेचर पढ़ लें, कहां तक उस टॉपिक को पढ़ लें आप, ये आपके ऊपर है। 100 पेज पढ़ लें, 100 पेपर पढ़ लें, 500 पेपर पढ़ लें, 1000 पेपर पढ़ लें, ये सब डॉट लगते चले जा रहे हैं आपके। आप जब पढ़ेंगे ये सारी चीजें, तो उसमें कहीं आपको मिलेंगी चीजें जो गैप्स हैं। खुद ही पेपर में लिखा हुआ है, इट हैज नॉट येट बीन प्रूव्ड, अभी पता नहीं है इसके बारे में, इट नीड टू बी एक्सप्लोर्ड। वहां आप गैप करते चले जा रहे हैं, राइट? अब इन रिसर्च क्या है? बेसिकली रिसर्च क्या है? ये इनोवेशन है। रिसर्च क्या है? ये कनेक्टिंग द डॉट्स है। अब आपने कहा कि 2 डॉट लगाए, ठीक है, 2 डॉट लगाए आपने, और 2 डॉट लगा के आपने उन डॉट को कनेक्ट कर दिया। एक डॉट ये लगाया, एक डॉट ये लगाया, ठीक है, ये डॉट ये लगाया, 2 डॉट लगाए, इन दोनों डॉट को आपने कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या हुआ? ये आपकी रिसर्च कंप्लीट हो गई। मान लीजिए अगर आपने डॉट लगाए, ये 2 लाइनें मैंने दिखाई हैं आपको, एक लाइन पूरी, एक लाइन आधी है, नजर आ रहा है? तो जो लाइन पूरी है, इस डॉट से इस डॉट के बीच में हो सकता है और भी आगे डॉट होंगे, there's a lot of dots, हर डॉट आप फिल नहीं कर सकते। यू फिल द गैप, दिस इज वन रिसर्च, कंप्लीट रिसर्च। नाउ दिस इज हाफ डॉट। तो हम लोग क्या करते हैं, वो आधा डॉट बढ़ते हैं रोक देते हैं, यार अब कहते हैं छाप दो, यहाँ पब्लिश कर दो। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कहते हैं यहाँ छाप दो, पब्लिश कर दो। फिर आगे बढ़ते हैं, कहते हैं यहाँ छाप दो, पब्लिश कर दो। क्यों? क्योंकि हमें नंबर ऑफ पेपर बढ़ाना है। हमें क्या करना है? हमसे यूजीसी कहती है साहब एपीआई स्कोर आपका इतना होगा तो आप एलिजिबल हो गए सीनियर ग्रेड के लिए, असिस्टेंट से एसोसिएट के लिए, एसोसिएट से प्रोफेसर के लिए, है ना। प्रोफेसर से आगे तो अभी आया नहीं है सब जगह, एक आध जगह आया खाली सीनियर प्रोफेसर का, वरना आप प्रोफेसर भी लग जाएंगे एपीआई बढ़ाने में, लग गए बहुत से लोग। तो एपीआई हमें बढ़ाते हैं हम। तो जो पेपर हम छाप रहे हैं, वो पेपर जब पब्लिश हो जाएंगे तो डॉट फिल नहीं होंगे उसके। बात समझ आ रही है? वो ड्रॉप आउट हो जाएगा। वो जैसे ना बच्चे ने एडमिशन लिया, क्लास में 100 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं एक बैच में, एक सेमेस्टर के बाद 2 ड्रॉप आउट हो गए, 2 के बाद 3 ड्रॉप आउट हो गए, फिर 3rd 4th 5th के बाद जो है एक अल्ट्रा। एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर लास्ट ईयर जो है, जब एंड ऑफ द सेशन कोर्स हुआ, तो उसमें आपके पता चला 20 में से सिर्फ 13 बच्चे बचे हैं।
either they failed or they drop out. तो कंप्लीट बैच तो नहीं हुआ ना, कंप्लीट बैच हमारा 20 का है, इट इज इनकम्प्लीट बैच। इसी तरह रिसर्च जब हम लेके चलते हैं, बेस्ड ऑन बैकग्राउंड वी डेवलप हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जब डेवलप करते हैं तो उसका एक डिलीवरेबल होता है, क्या आपका आउटपुट होगा, क्या आप कंक्लूड करोगे इस हाइपोथेसिस। ये एक हाइपोथेसिस ही बोलते हैं इसको ये हाइपोथेसाइज करते हैं आप उसको, इसका वर्ड ही इसलिए हाइपोथेसाइज है। यू हाइपोथेसाइज कि हम ये करेंगे तो इसके बाद हमें ये मिल सकता है, ये नहीं कहते मिलेगा या मिल गया, ये नहीं कहते मिल सकता है या मिलेगा, फ्यूचर की बात करते हैं। फिर हम उसको मिलने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अगर साइंस का काम है, एक्सपेरिमेंटल साइंस है। थ्योरेटिकल साइंस है तो हम कुछ फॉर्मूले से प्रूव करते हैं, मैथमेटिक्स है, थ्योरेटिकल फिजिक्स है। केमिस्ट्री है तो हम कुछ केमिकल रिएक्शंस एक्सपेरिमेंट करके पहुंचते हैं। और कोई डिसिप्लिन है तो उसको लिटरेचर बेस्ड सर्च करके या हिस्टोरिकल एविडेंसेस लेके हम उसको प्रूव करते हैं, और फिर हम उस हाइपोथेसिस को जो हमने प्रपोज किया था वो प्रूव कर देते हैं। अब देखिए एक चीज और है यहाँ पर, बहुत कैच है यहाँ। आपको अगर सब हाइपोथेसिस, तो हमने ये सोचा कि साहब हमें यहाँ से दरवाजे तक जाना है और ये हमारा आउटपुट है, हम यहाँ से चले और हम दरवाजे पे पहुंच गए, हमारा रिसर्च हो गई पूरी। यस, योर रिसर्च इज कंप्लीटेड, यू फिल द डॉट। एक आदमी ने कहा नहीं साहब मुझे यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, हमें सिटी तक जाना है, सिविल लाइन सिटी कैंपस जाना है। वो यहाँ से चला, रास्ते में ट्रैफिक आया, रुका, हर्डल्स आई, फिर उसने बोला लेफ्ट टर्न लो, राइट टर्न लो, अच्छा ये गली जाती है, वहाँ वहाँ पहुंचा, वहाँ बहुत जाम लगा हुआ है। वहां से आगे निकला, फिर आगे पहुंचा। अल्टीमेटली वो टाइम तो लगा उसे, 3 घंटे लग गए पहुंचते पहुंचते, लेकिन वो पहुंच गया वहां, ही अचीव द गोल। तो इसकी भी एक हाइपोथेसिस थी, इसने भी रिसर्च की, ये भी पहुंच गया। अब बताइए किसकी क्वालिटी ज्यादा इंप्रूव होगी? ऑब्वियसली जिसने बड़ा टारगेट लिया है, जिसने बड़ी चीज अचीव करना चाहिए। ये तो मैंने एक बहुत वेग सी एग्जांपल दे दी, दिस एग्जांपल इवन नॉट फिट इन द रिसर्च बेसिकली, बट इट मीन्स यू हैव अ डिफरेंट टारगेट्स। एक आदमी ने टारगेट के साथ मुझे जो है वो ड्रग को मार्केट तक ले जाना है, एक ने कैसा मुझे ड्रग जो है बस खाली डिजाइन करना है सिंथेटिकली इन सिलिको बेसिस पे और फिर छोड़ देना है। तो जिसने खाली इन सिलिको कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर बेस्ड स्टडी करके एक मॉलिक्यूल बना दिया, उसका पेपर भी तैयार है, और जिसने मार्केट तक ले गया उसका पेपर भी तैयार है। बताइए किसका पेपर हाई इम्पैक्ट में छपेगा? ऑब्वियसली जिसने स्टोरी कंप्लीट की, जिसने अपने आगे तक डॉट, जो उसने फोकस बनाया था वो अपना आगे तक ले गया, उसे कंप्लीट किया विद ऑल एविडेंसेस एंड दे पब्लिश इट। तो हमें छापना, हमारा पेपर ऑटोमेटिकली छपेगा, हम नहीं छापेंगे, लेकिन हमें हमारे एंड पे जो काम है वो क्या है? हमारे एंड पे ये कथन काम नहीं है कि हम इम्पैक्ट तलाश करने बैठ जाएं पहले दिन से, हमें इस इम्पैक्ट में छापना है, नहीं, दिस इज ए टोटली रॉन्ग कंसेप्ट। या हमें इतने पेपर छापना है साहब, इट्स टोटली रॉन्ग। हमें तो ये देखना है, हमें ये काम, हमारा ये टारगेट है। मुझे मैं एक वैक्सीन पे काम कर रहा हूँ आजकल, ड्रग रेजिस्टेंस वैक्सीन पे। तो मेरा टारगेट है कि आई हैव टू गेट दिस ड्रग वैक्सीन ready for the society. So I'm not thinking to publish in between. I'm just focusing on this. Okay, let it be moved to forward and we'll get this work done. And once we've done it, then we are satisfied. Then we go for trials and we go for publication. So that is a big paper. तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फोकस्ड हो वो एक टारगेटेड फोकस हो। जैसे मैंने एग्जांपल दी, आपने डॉट्स बनाए, रिसर्च का मतलब ही है इन सारे डॉट्स को कनेक्टिंग द डॉट्स, फिल द गैप्स। कुछ गैप्स छोटे होंगे, कुछ गैप्स बड़े होंगे, इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ मच गैप्स यू एक्सप्लोर, हाउ मच यू आइडेंटिफाई द गैप्स, ये भी आपके ऊपर है। जब तक आप गैप्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, देखिए एक आदमी लिटरेचर पढ़ता है, वही आदमी, 2 आदमी लिटरेचर पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं, लेकिन एक आदमी उसको करके हाइपोथेसाइज करके एक बड़ा काम कर देता है, दूसरा बंदा जो है वो इतना बड़ा नहीं कर पाता। अब उसके बहुत से फैक्टर्स हैं। आपको अगर फैसिलिटी नहीं है, ये नहीं है, तो मैं इसको नहीं मानता हूँ। फैसिलिटीज शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज आज की डेट में। दे शुड नो, मेरी लैब में बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, वेरी एक्सपेंसिव फैसिलिटीज मैंने नहीं प्रोक्योर की। आई हैव अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स विद मी, काफी पैसा मैंने जनरेट किया, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट माय मनी इन दैट फैसिलिटी व्हिच आई एम नॉट यूटिलाइजिंग रेगुलरली।
जो मुझे कभी कभी महीने में, 2 महीने में, साल में यूज करना है, व्हाई शुड आई परचेज दैट? हाँ, जो मैं रेगुलर कर रहा हूँ, मतलब आई नीड टू हैव लाइक एवरी डे माई नंबर ऑफ टाइम द मशीन रन, सो आई हैव टू परचेज दैट मशीन। लेकिन जिस मशीन में मुझे साल में, 6 महीने में, 2 महीने में काम करना है, व्हाई शुड आई स्पेंड मनी, व्हाई शुड आई स्पेंड दिस पब्लिक मनी ऑन दैट? और गवर्नमेंट ने भी अब इसको कंट्रोल कर लिया है, बड़ी बड़ी मशीनें जिस पे कम काम होता है, गवर्नमेंट नहीं, फंडिंग एजेंसीज नहीं दे रही है अब। ये तो आप कोलैबोरेशन में लीजिए, या आप सेंट्रल फैसिलिटीज करिए, या आप यूनिवर्सिटी क्रिएट करिए, या आप आउटसोर्स करिए। लेकिन आज की डेट में कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप सोचो और ना हो पाए। सो वेयर इज द प्रॉब्लम? थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम. I blame my thought. I blame my brain. I blame my mind, processing of my mind. I don't want to process my mind thoroughly. I don't want to put my efforts to think and think and think all the time, because I don't have a time to think. I have a time to so many other things. I have a time to gossip. I have a time to take a tea with the friends. I have a time to, sitting here and there. I have a time to pollute my mind through politics. I have a time to so many things, but I don't have a time to think on a problem. What is the major problem today before the humanity? We have to think over it. In medical sciences, antimicrobial resistance is the next pandemic. By 2050, 10 million people will die every year. This is a WHO report, pre-COVID report, and post-COVID report has not yet come, but I think it will definitely either increase the number to die every year, or it can attain even before 2050, maybe 2040 or 2035. So what is the problem? Where to focus? We have to think over it and try to achieve that. मैंने ये बात कही कि कोई चीज ऐसी नहीं है जो पॉसिबल ना हो आज के जमाने में। क्यों आज के जमाने में पॉसिबल ऐसी चीज नहीं है, उसकी वजह मैं बता रहा हूँ। बिकॉज नाउ वी आर इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड इन कनेक्शन विद ऑल अक्रॉस द ग्लोब। एक सेकेंड लगता है हमें, हमने फोन डायल किया और कान पे लगाया और अभी भी कनेक्ट, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जहां चाहे आप कनेक्ट हो जाएंगे। एक विद इन फ्रैक्शन, बेल गई और उसने क्लिक किया और आप कनेक्ट हो गए। उसे भी चलिए छोड़िए, आप ऑनलाइन सारे पोर्टल्स हैं, जूम है, वेबएक्स है, गूगल मीट है, यानी ये क्या चल रहा है प्लेटफॉर्म पता नहीं क्या ये है, देयर सो मेनी थिंग्स। सो यू थिंक ऑफ कनेक्टिंग पीपल्स, नेटवर्क इंक्रीज करिए अपना, रिसर्च नेटवर्क, नॉट पीआर फॉर पॉलिटिकल पीआर। आज के दौर में लोग अपना पॉलिटिकल पीआर बढ़ाते हैं कैंपस में, यूनिवर्सिटी में, ताकि उन्हें पोजीशन मिल जाए, रजिस्ट्रार बन जाए, वीसी बन जाए, पीवीसी बन जाए, कंट्रोलर बन जाए। बट दे आर नॉट बीइंग पुट ऑन ऑल दीज पोजीशंस ऑन देयर क्रेडिबिलिटी, ऑन द क्रेडेंशियल्स। अब बताइए कौन बनता है? जो वाइस चांसलर के करीब है वो आपका रजिस्ट्रार बन जाएगा, वो आपका कंट्रोलर बन जाएगा, ठीक है, वो अपना काम रिसर्च भी छोड़ देगा, सारी पोजीशन मिल जाएंगी उसकी यूनिवर्सिटी की। हालांकि उस पोजीशन की रिसर्चर को कोई जरूरत नहीं, रिसर्चर डोंट नीड दिस एनी पोजीशन, दीज आर लाइक burden on the researcher to have these positions, right? But so we are spending our time, देखिए मेरा काम, ये डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ कि I'm just trying to sensitize you how to approach and what to do and think sensibly on that. Just think on the problems. रॉबर्ट कोच ने प्रॉब्लम सोची थी, राइट? पास्टर ने प्रॉब्लम सोची थी, फ्रांस और जर्मनी की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी उन्होंने, इकोनॉमी इंप्रूव कर दी, साइंटिस्ट थे वो। द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द साइंटिस्ट। देखिए गवर्नमेंट इज ऑलवेज बेस्ड एंड डिपेंडेंट ऑन साइंटिफिक कम्युनिटी। मैं आपको लिख के बता दूं, दुनिया की कोई कंपनी, कोई टेक्नोक्रेट, मैं बहुत ओपनली और बहुत डेयरली बात कर रहा हूं, हिल नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता, कैनॉट रन द बिजनेस विदाउट यू। आप बता दिए मुझे, नेम दिस एनी टेक्नोलॉजी, एनी कंपनी, बड़े से बड़ी कंपनी का आप नाम दे दिए मुझे, उसका प्रोडक्ट का बेस आके एकेडमिशियन पे रुकेगा वो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, मैकेनिकल कंपनी हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हो, कंप्यूटर की कोई कंपनी हो, सॉफ्टवेयर कंपनी हो, इट विल एंड अप विद द एकेडमिशियन। जब तक कि एकेडमिशियन उसको राह नहीं दिखाएगा
डायरेक्शन नहीं देगा, R&D यूनिट्स में क्या होता है, एकेडमिशियन तो काम करता है. सो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन एकेडमिशियंस. सो अगर हमारी क्वालिटी डाउन हो जाएगी, हमारी थॉट प्रोसेसिंग रिसर्च में कम हो जाएंगे, या साइंस में कम हो जाएंगे, या इन जनरल रिसर्च में कम हो जाएंगे, तो हमारा पूरा देश नीचे आ जाएगा. Are you getting my point? So if we want to improve the country is dependent on technology. सारी इकोनॉमी आपकी क्या है, कंपनीज पे चल रही है. बड़ी बड़ी कंपनीज क्या है, सब दे ऑल आर बेस्ड ऑन द साइंस, ऑल आर बेस्ड ऑन द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी. Science and technology is the backbone of the whole country. And if we damage the science and technology through unintentionally, I'm not saying intentionally, unintentionally, I'm sorry if I'm deviating my talk because sometimes I'm very emotional, unintentionally, then who will be the sufferer? You will be the sufferer. आपने ऐसे पॉलिसीज बना दी, ऐसी चीजें बना दी, एपीआई स्कोर, अब बेचारा प्रोफेसर जो है लगा हुआ है उस पर रोज पेपर छापने पे, क्वालिटी बढ़ ही नहीं सकती है. 3-3 साल लगते हैं, 5-5 साल लग जाते हैं टेक्नोलॉजी को लाने में. मतलब इस पोजीशन पे क्या आप उसको अप्रूवल के लिए लेके जाइए, तो कहां हो पा रहा है वो? आप बताइए आज की डेट में कौन सी ऐसी ड्रग है, एंटीबायोटिक या ड्रग जो इंडिया ने बनाई है? 2011 के बाद बना ही नहीं है कुछ, वो तो वर्ड में नहीं बना है पूरा. कंपनीज फ्लॉप हो गई सारी, फार्मा कंपनीज, दे आर नाउ वर्किंग ऑन दैट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस. जेनरिक मेडिसिन आ रहे, नई इनोवेटिव कोई नया चीज लेके आइए, तो ठीक है, there are some, but they are very very fractions and just like a peanuts. So my concern is, until and unless every one of us focus on quality research, and especially in science and technology, I'm not discriminating the arts and humanities, that's also very important. Social science is very important, which is directly connected to the medicine and directly connected to the health sciences and so many other things. Without social science, we are not human beings basically. But our focus should be on quality, and I think government should also make some policies on that. No, they are coming up and putting some efforts on improving the things, and accountability आ रही है अब थोड़ी थोड़ी. अब चीजों को पहले हम लोग ये करते थे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते थे, आदमी मल्टीपल प्रोजेक्ट सबमिट कर देता था, आउटपुट एक ही आता था. आज से 10 साल पहले, अब नहीं कर सकता. अब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे पोर्टल्स बना दिए हैं, आपको ऑनलाइन सबमिट करना है तो एवरीथिंग इज ऑन सिंगल डे. सो आपने एक प्रपोजल सबमिट किया, यू कैन नॉट सबमिट सेम प्रोजेक्ट इन अदर फंडिंग एजेंसीज. हमने भी किए हैं, आई मीन आज से 15 साल पहले थोड़ा मॉडिफाई किया, टाइटल यहाँ डाल दिया, वहाँ डाल दिया, यहाँ से भी पैसे ले लिया, वहाँ से भी ले लिया, काम कर रहा है, खूब काम कर रहे हैं. लेकिन अब दे हैव डन इट, बट we did a lot of work on that part. So my only concern is that when the word quality comes, publication बाद में आएगा. Don't think of publication, or even don't think of impact of publication, just think of what you are doing. आपकी hypothesis क्या है, आपका carry forwarding जो objectives हैं वो क्या हैं, और इसका end up result क्या है, outcome क्या है, क्या चीज deliverable है, क्या उसका deliver क्या हो रहा है उससे. It varies from idea to idea, it varies from subject to subject, discipline to discipline, but there is some deliverable. क्या निकल के आ रहा है, and does that deliverable, does that outcome is significant for society? या हम अपने आप से पूछें क्वेश्चन ये, क्या ये सोसाइटी के लिए जरूरी है? अच्छा, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अ सोसाइटी. सोचे जो हमने चीज बनी, क्या हमें जरूरत पड़ सकती है इसकी? मान लीजिए हमने जो है वो एक दवा बनाई, एक चीज हमने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की कि हम ड्रग रेजिस्टेंस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, तो डेफिनेटली जब वो बन जाएगी तो हमें लगेगा हाँ यार अगर हमें हो जाता है तो हम भी बच जाएंगे इससे. तो आदमी अपने ऊपर रख के सोचे, दैट इज द बेस्ट जज कि साहब हाँ, क्या ये सोसाइटी को जरूरत है इस चीज की. दैट इज व्हाट द जज, रियल जज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ योर रिसर्च. डजंट मैटर कहाँ छपा है वो, 100 इम्पैक्ट में छपा है या 200 में छपा है या 0 में छपा है, डज नॉट मैटर, नथिंग. देखो वो चीजें बाय डिफॉल्ट है, मैं बता रहा हूँ वो चीजें बाय डिफॉल्ट है. अब आप कुछ लोग साइटेशन पे लड़ते हैं, अरे मेरे साइटेशन नहीं बढ़ रहा है, मेरे कभी नहीं बढ़ेंगे साइटेशन तो ऑटोमेटिक एक प्रोसीजर है भाई. आपके साइटेशन आप सेल्फ साइट तो कर सकते हो अपना,
कि आपने खुद ही अपने पेपर में 10 डाल दिए, दूसरा पेपर लेकर उसमें भी 10 डाल दिए, तो आपको 10 × 10 आपके 100, 200, 300 हो जाएंगे। लेकिन क्या आपका पेपर मैं साइट कर रहा हूँ या मेरा पेपर आप साइट कर रहे हैं? दैट इज द क्वेश्चन। हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी, मतलब साइंटिफिक सोसाइटी में, हमारे उस एरिया डोमेन में हमारा काम कितने लोग सब वो कर रहे हैं, सबमिट कर मतलब पब्लिश साइट कर रहे हैं? दैट इज द क्वेश्चन। वो कौन करेगा? तो वो तो द बॉटम लाइन क्या है, आपको अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। और क्वालिटी इम्प्रूव करने का मैंने बहुत ही बेसिक तरीका बताया है। ज़ाहिर है विद स्पेसिफिक एग्जांपल लेके मैं बता नहीं पाऊंगा ना, सब समझ पाएंगे, बट ये कि आप बैकग्राउंड को एक्सप्लोर करिए, मैक्सिमम मोर एंड मोर लिटरेचर यू सर्च। इसलिए कभी कभी ना आप पेपर देखें कुछ लोगों के, तो उसमें रिव्यू लिटरेचर जो रेफरेंसेस होते हैं वो बहुत ही अपडेटेड नहीं होते हैं। तो कभी कभी रिव्यूअर्स कमेंट लिखता है द रेफरेंसेस आर नॉट अपडेटेड। सो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट टू रिजेक्ट द पेपर, क्योंकि जब आपके रेफरेंसेस अपडेट नहीं है, आपने लिटरेचर सर्च ही नहीं किया, तो आप गैप कैसे फिल करेंगे? आपको गैप ही नहीं पता। यानी कितने गैप ऐसे होंगे जो आप you might escape that gaps. Are you getting this point? So in order to improve the research, you should have strong literature search. अच्छा, आज की डेट में क्या है, आपने कंप्यूटर पे बैठना है, सर्च इंजन्स बहुत सारे हैं, साइट्स हैं बहुत सारी, आपने पेपर सर्च करना है। कुछ पेपर फ्री होते हैं एक्सेस, कुछ पेपर होते हैं पेड होते हैं, बट इफ योर यूनिवर्सिटी हैज subscribe that journals or that publisher like Science Direct or Elsevier, Springer and others, Nature, then you automatically retrieve them. लेकिन हर यूनिवर्सिटीज में नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी पे नहीं करती है, यूनिवर्सिटी की प्रायोरिटी परहैप्स ये नहीं है, तो उसकी प्रायोरिटीज और रहती हैं। यूनिवर्सिटी की सारी प्रायोरिटीज दूसरी होती हैं, लेकिन बस ये प्रायोरिटी होती है कि आप टीचर से मैक्सिमम डेटा एक्सट्रैक्ट कर लो ताकि हमारा नैक में और उसमें स्कोर अच्छा हो जाए। और टीचर को दो कुछ मत, ना उसको सीड मनी दो, ना उसको पब्लिकेशन ग्रांट दो, ना उसको रिसर्च ग्रांट दो, ना उसको कोई फैसिलिटी दो, ना उसको सब्सक्राइब करो जर्नल्स ताकि वो एक्सेस कर पाए। सो दिस इज हाउ द होल सिस्टम ऑफ आवर यूनिवर्सिटीज, वी कांट डू एनीथिंग, बट these should not be an excuse for us, and we should try hard at our own level that to cut down all these hurdles, and through out these hurdles, and just try to get best and best research through our efforts and collaborations and outsourcing. देखिए, collaboration और outsourcing are the two important tools nowadays that you can do anything. जो मैंने पहले कहा था ना, आप आज की डेट में हर काम कर सकते हो। मेरे पास सीक्वेंसर नहीं है, बट आई डू सीक्वेंस एनालिसिस, आउटसोर्स कराता हूँ, सॉफ्ट सीक्वेंसेस हैं वो रिट्रीव करता हूँ डेटा से एंड वर्क ऑन इट। तो आज की डेट में आप इंटरनेट की वजह से और कनेक्टिविटी की वजह से यू कैन कनेक्ट टू as many people as you want, and there many people they will be ready to collaborate. ऐसा नहीं कि आपको, अगर आपका अच्छा प्रपोजल है और कंसेप्ट अच्छा है, तो anybody can, you know, yes, ठीक है साहब, आप हमारे साथ काम करिए, we'll happy to work with you if you ensure them that to give some input. अगर उसको लगता है, मान लिया आप मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आप जो है वो कुछ इनपुट इस प्रोजेक्ट में अच्छा आइडिया है दे सकते हैं, तो डेफिनेटली आई विल से ओके, यू कैन कम, यू कैन टेक दिस पार्ट, चाहे वो 30% काम हो या 20% हो, 10% हो या 50% हो, doesn't matter, but you are contributing to some extent, and that is a significant part to get that research forward. हाँ, अगर मुझे लगेगा साहब ये काम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, इस वजह से कि मैं खुद कर रहा हूँ इस काम को, मेरे पास फैसिलिटीज हैं, या इस वजह से कि मैं इस काम को ऐड नहीं करना चाहता, तो मैं कहूँगा सॉरी, आई कैन नॉट डू इट। बट लेकिन इफ यू अटेम्प्ट 10, एटलीस्ट 1 विल बी रिस्पॉन्ड। अगर आप 10 को अप्रोच करेंगे तो एक आध तो कोई रिस्पॉन्स करेगा। ऐसा नहीं है कि बिकॉज इट्स अ बिग एकेडमिक। आज से 50 साल पहले, या मतलब 50 साल तक मैं बहुत पहले चला गया, बट ये अगर मेरी पैदाइश के वक्त की चीज़ है वो, तो बट ये इफ आई आस्क यू लाइक 10 or 20 years before, when I was doing PhD, 24-25 years old, then I still remember that the many peoples which are not in the race, and faculties are less, researchers are less. So now the things are increased. Everybody's want to this field and have this kind of thing.
तो इसलिए everybody will be ready to collaborate if he or she is convinced with your objective. So you have to, it is your art and marketing talent that you convince others, साहब हम ये काम करना चाहते हैं and I want to work with you, please do help. Does not matter whether you are private institution or government institutions or a small college or big college. Idea plays important role. And what is your contribution? अगर आप मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, मैं पूछूंगा आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, आपका आइडिया क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, आप कितना कंट्रीब्यूट करेंगे इस प्रोजेक्ट में. दैट्स इट. If I think that you can contribute in this project and you can provide at your own to communicate something through knowledge-based dissemination or through experimental science, if you are in experimental research, then definitely anybody can collaborate. So collaborate through collaboration, or if you have money, if you have good funds through university or through your own funds, then you can outsource the things. For example, आपको TEM कराना है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कराना है, which is of 7 to 8 करोड़ मशीन है, वो की मशीन आती है, फिर आपके यहाँ नहीं होगी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में. आपने क्या किया, आपने AMU भेज दिया, DU भेज दिया, BHU भेज दिया, JNU भेज दिया, सैंपल करा लिया आपने, एंड यू पे लाइक 2000 रुपीज और 1000 रुपीज, जो भी उसका चार्जेस है. तो आउटसोर्सिंग इज अनदर थिंग. सो थ्रू आउटसोर्सिंग, थ्रू कोलैबोरेशन फ्री है, because you will be the partner in the naming in the paper. So that's one of the advantage for both of you, that you have a name in the papers, and you can easily collaborate each others because of the exchange name in the papers and authorship. So this is also possible. So in order to improve the quality, focus on the quality work, complete a story, fill the gaps, connect the dots, and reach to the final conclusion, reach to the final product with the help of collaborations and with the help of outsourcing if funded projects you have, right? And that would be the only way that to move further in the research and technology. And if we just keep running to improve our API score, then I think हम API score बढ़ा के ले जाएंगे and promotion भी हो जाएगा, लेकिन हमारे एंड से कोई आउटपुट नहीं आएगा. So in order to get the output, we should focus at some primary level or secondary level, right? Because tertiary level पे तो आदमी फिर आराम करता है, right? So tertiary level, I mean like when you're full professor. So until unless he or she has a passion of doing research, and again, this is a fact that if you want to carry forward your country, I'm talking in terms of like country, because we all are from India, and so India should lead, and we have a lot of potential. The only thing is that to groom these potentials and to optimize these potentials, you should not waste also. अब जैसे कुछ लोग कहते हैं साहब जब तक 5-10 करोड़ की ग्रांट नहीं होगी हम रिसर्च कैसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. मेरे पास आज तक कोई 5-10 करोड़ की ग्रांट नहीं रही है. हाँ, सेंटर के फॉर्म में जो ग्रांट्स हैं वो ठीक है 2.3 करोड़ की हैं, बट जनरली मेरे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 50 लाख 60 लाख मैक्सिमम, वरना 35 से 65 की लाख के बीच के प्रोजेक्ट हैं, या इवन कम के भी हैं, ठीक है. लेकिन ये कि वी वर्क वेरी वेल, आई मीन बहुत अच्छा काम किया हमने, बहुत चीज़ें इस्टेब्लिश की, ह्यूमन ट्रायल्स पे भी हम लोग गए, पेटेंट भी हुआ, टेक्नोलॉजी आउटपुट स्टार्टअप पे भी हमने काम किया. कभी नहीं कहा कि साहब हाँ जब तक 1 करोड़ की ग्रांट नहीं होगी हम रिसर्च कैसे कर सकते हैं. आई नेवर आस्क इट, बिकॉज यू शुड लर्न हाउ टू ऑप्टिमाइज द थिंग्स. जो चीज़ें आपकी 100 रुपये में आती हैं आप उसको 10 रुपये में भी काम कर सकते हो. जो चीज़ें 100 रुपये में आती हैं आप उसको गिवन यूज एंड थ्रो कर रहे हो, आप उसको रीयूटिलाइज भी कर सकते हो. एंड वी डिड इट. प्रोटीन्स प्यूरिफिकेशन की कॉलम्स आते हैं, एक्सपेंसिव, प्रोटीन प्यूरिफाई करते हैं एक्सप्रेशन के बाद, हम स्टूडेंट को रीयूज करा लेते हैं, क्लीन करा के उसको हो जाता है, तो वी सेव द मनी. सो बेसिकली द ओनली थिंग इज दैट इफ यू लर्न हाउ टू ऑप्टिमाइज द थिंग्स, हाउ टू ऑप्टिमाइज द रिसोर्सेज. देखिए इसमें 2 फायदे हैं. यू कैन सेव द रिसोर्सेज. पहले क्या होता था, पहले एक ही इक्विपमेंट एक ही यूनिवर्सिटी में 10-10 होते थे. फिजिक्स में भी है, वो केमिस्ट्री में भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है. आज की डेट में
एक इक्विपमेंट जो फंडिंग एजेंसी आपने एक को दे देगी, दोबारा नहीं देगी। वो कहेगी आप इसे ऑप्टिमाइज करिए। आप लिख के दीजिए कि व्हाट इज द परसेंट यूटिलाइजेशन बाय द अदर्स पीपल। This is good thing. So you should learn the resource optimization so that you can also save the resources for others, for next generation, and also to cut down the budget. And that budget can be utilized some other work and some other things. So I think with this, I may stop here. And we have, I think, 20 minutes, 25 minutes more perhaps to discuss. So if you have any questions or any query, please most welcome. And कोशिश पूछना हो, अगर आपको पता नहीं, मैंने तो बोल दिया जो मेरे समझ आया. I don't know. It is not a very organized lecture. I'm sorry for that, but I think it's a very haphazard kind of a thing. But this is just like information which need to be learned to you, and you should know, how to publish and where to publish, why to publish, and what should be the significance of the publications. इसी पे मैंने आपको थोड़ी सी बातचीत कर ली आपसे. So if you have any query or any question, please let me know. जी सर, नमस्कार. नमस्कार. मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह जयपुर से बोल रहा हूँ. जी अजय कुमार सिंह. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपका लेक्चर बहुत ही यूजफुल रहा और बहुत सारे जो प्रश्न मन में हमेशा आया, जो क्वेरीज थी, उनमें से कुछ क्वेरीज के जवाब भी मिले. थैंक यू. कुछ जो मुझे अपडेशन लगता है सर कि नंबर 1, वी आर टॉकिंग अबाउट इम्पैक्ट फैक्टर्स. तो अक्सर जो फॉर्म्स भरते हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं अदर यूनिवर्सिटीज में या और जगहों पे, तो वहाँ पे मैं मास कम्युनिकेशन से हूँ बेसिकली, और वहाँ पर वो कहते हैं कि साहब इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो थॉमसन राइटर से हम मेजर करेंगे. जी जी. लेकिन आप जानते हैं सर कि सोशल साइंसेस के जो रिसर्च जर्नल्स हैं, राइट, वो इंडिया में ऐसे नहीं है कि जो कि थॉमसन राइटर्स में हों. एक तो ये प्रॉब्लम बहुत आती है. दूसरा, एक जो बात है कि मास कम्युनिकेशन में नंबर ऑफ जर्नल्स ही बहुत कम है. आप गिन सकते हैं उंगलियों पे. तो वो बच्चे क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेटर रिसर्च सेंटर भी हूँ, तो बच्चे क्या करते हैं कि इंजीनियरिंग के जर्नल्स में या साइंस के जर्नल्स में पब्लिश कराते हैं, बिकॉज कोई चॉइस नहीं है उनके पास. राइट राइट. तो वो भी एक प्रॉब्लम आती है कि उनके साइटेशंस या उनके रिव्यू कैसे होते होंगे. पीयर रिव्यूड है तो कैसे रिव्यू होते होंगे. नंबर 3 सर, जो एक हम बात करते हैं कि भाई स्कोपस लिस्टेड, या हम बात करते हैं कि यूजीसी केयर. तो सर एक अनफॉर्चुनेट है बहुत हम लोग की यूजीसी केयर या जो हम लोग बात करते हैं कि भाई स्कोपस है, उनमें भी बहुत सारे जर्नल्स का हाल बहुत बुरा हो गया है. बिल्कुल. वो क्या करते हैं, पैसे लेके 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 लेके पेपर छापते हैं और कुछ दिनों के बाद बाहर हो जाते हैं. राइट. तो वो भी रिसर्च स्कॉलर्स भी बहुत परेशान होते हैं, और इवन प्रोफेसर्स भी हैं जिनके पब्लिश होते हैं, वो भी बहुत परेशान होते हैं. तो मुझे सर ये लगता है कि क्या यूजीसी इस तरफ नहीं देख पा रही है, या जो आप जैसे सीनियर प्रोफेसर्स हैं उनको इस तरफ ध्यान दिलाना चाहिए कि ऐसा पैरामीटर आप सब्जेक्ट वाइज तय करें. अगर मास कम्युनिकेशन है, हिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है, कुछ ऐसे पैरामीटर्स बनाएं, या कुछ ऑनलाइन, अब तो सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है, कि यूजीसी में ही ऑनलाइन पब्लिश करें. यूजीसी ही हमको कोई ऐसा एक पैरामीटर बना दे जिससे की प्रॉब्लम ना हो. तो एक प्रॉब्लम ये आती है सर कि बहुत अच्छा पेपर मैंने लिखा, स्कोपस लिस्टेड था, उसके बाद पब्लिश हुआ, बाहर हो गया, उसके बाद वो कहते हैं साहब अभी तो नहीं है, क्या प्रूफ है, मैं प्रूफ लेके. तो या तो फिर आप हमारा रिसर्च पेपर की क्वालिटी देखो आप, है ना, कि भाई ये क्वालिटी आपके रिसर्च पेपर की है, इसलिए ओके, कहीं भी प्रिंट हुआ, है ना. और या तो फिर अगर हमें रिसर्च जर्नल ही सर देखना है, तो फिर आप जर्नल की क्वालिटी देखो, तो फिर आप अवेलेबल कराओ. तो ये चीजें सर एक जो अजीब सा घालमेल चल रहा है, ये मुझे लगता है कि मैं इसी बात पे कह रहा था कि हमें अपनी रिसर्च क्वालिटी पे फोकस करना है, और रिसर्च क्वालिटी ही को देखना है कि हमारी रिसर्च क्वालिटी होना चाहिए. बेसिकली एटलीस्ट सब्जेक्ट वाइज तो किया जा सकता है. जैसे मास कम्युनिकेशन में आप हैं, सो इफ यू आर एक्सपर्ट, और कोई पेपर्स आपके सामने रिव्यू के लिए आ रहे हैं, या कोई सीवी आ रहा है किसी का सिलेक्शन कमेटी के लिए, तो आप उसे खाली पेज पलट के ही पहचान लोगे क्या काम किसने क्या किया है. दिस इज डजंट मैटर कि किस इम्पैक्ट में छपा है, स्कोपस में छपा है, नहीं छपा है, अगर वो जर्नल जो है वो कोई भी हो, लेकिन क्योंकि आपका बीइंग एक्सपर्ट इन दैट एरिया, यू कैन सी. अब जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक
फार्मा एक कंपनी है, उसकी एक अवार्ड देती है, यंग साइंटिस्ट अवार्ड बच्चों को देती है, रिसर्च स्कॉलर्स को, तो वो फार्मा में बेसिक साइंस में देती है। तो मैं उसको कभी कभी रिव्यू करता हूँ, अक्सर मेरे पास रिव्यू के लिए आते हैं एप्लीकेशन। तो यकीन करें देयर आर 27-28 एप्लीकेशन होती हैं, एक पोर्टल देते हैं वो, लॉग इन पासवर्ड एंड वी ओपन द, इसमें 2500 डॉक्यूमेंट होते हैं, 2500। आई नेवर सी एनी डॉक्यूमेंट, मैं किसी डॉक्यूमेंट को नहीं देखता हूँ, मैं सीवी देखता हूँ, नहीं देखता हूँ लड़के का नाम क्या है, नहीं देखता हूँ कि किसके साथ कर रहा है, किस इंस्टीट्यूशन में कर रहा है, वो सामने सीवी में आ जाए, दैट्स अनदर थिंग। मैं सिर्फ उसका सीवी खोलता हूँ, और सीवी में भी एक 5 पेपर मांगते हैं, पब्लिश पेपर, वो पीडीएफ फाइल खोलता हूँ, और सिर्फ मैं जल्दी से स्क्रॉल करता हूँ उसकी पूरे 5 पेपर पीडीएफ फाइल कि किस तरह का काम किया है। पढ़ता भी नहीं हूँ उसको, मैं सिर्फ उसके एक्सपेरिमेंटल डेटा को देख के और उसके फिगर्स को देख के, ऑर्गेनाइजेशन को देख के मैं अंदाजा लगाता हूँ ये बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, एंड आई गिव दम। एंड फॉर लास्ट कपल ऑफ इयर्स आई एम डूइंग दैट एक्सरसाइज, एंड नन ऑफ द स्टूडेंट्स whom I did by this way is not recognized properly if I have given a listed them out that भाई इसको अवार्ड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसको इतने मार्क्स दिए हैं। सो दिस इज द हाउ द एक्सपर्ट्स कैन डू। ना मुझे इम्पैक्ट पता होते हैं उन पेपर के, ना मैं कोशिश करता हूँ, मैं जर्नल का नाम भी नहीं देखता हूँ, बिलीव मी, कि किस जर्नल में छपा हुआ है। मैं सिर्फ इम्पैक्ट वो देखता हूँ, उस वर्क है क्या स्ट्रेटजी है, क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है, सोसाइटल इम्पैक्ट, वो आपको टाइटल से पता चल जाएगा 1 मिनट में। काम कैसे उसने प्रूव किया है वो पता चल जाएगा। तो सही तरीका तो ये है, लेकिन असल में ये हर आदमी कर भी नहीं सकता। और मास लेवल पे मान लिया आपको 400 फॉर्म आ गए आपके पास स्क्रीनिंग के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन है, 400 फॉर्म्स आ गए। आप 400 फॉर्म्स में आप कैसे देखेंगे 400 लोगों के पेपर, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उसके लिए क्राइटेरिया बना लिया है कि साहब ये इतने इसमें इसके इतने नंबर, इतने नंबर, इतने नंबर। तो दैट इज द बेसिकली प्रॉब्लम बाय डिफॉल्ट, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, यूजीसी शुड कंसीडर दिस फैक्ट दैट द मेनी जर्नल्स व्हिच इज यूजीसी के जर्नल्स व्हिच आर टोटली रबिश जर्नल्स, व्हिच आर, क्योंकि मैं भी बहुत से जर्नल्स ऐसे हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि आई एम ऑथराइज्ड टू रिकमेंड द यूजीसी केयर जर्नल्स एज एन डायरेक्टर IQAC ऑफ AMU के इसको। तो उसको मैं, हालांकि मैंने काफी चेक पॉइंट्स लगाए हुए हैं कि ये चीजें होंगी तभी मैं करूंगा, कंटिन्यूटी है नहीं है, वॉल्यूम्स हैं, डाइवर्सिफाइड एडिटर्स हैं नहीं, ऐसा नहीं साहब आपने एक ही जगह के सारे एडिटर ले लिए हैं। तो ये सारी चीजें रखी हैं हमने उसमें, इश्यूज कितने आ चुके हैं, ऑनलाइन है नहीं है, हार्ड कॉपी है, पब्लिशर कौन है। बट ये कि उसके बावजूद भी जो कंटेंट है वो तो मैं सब नहीं देख सकता। हिस्ट्री का जर्नल है या फिजिक्स का जर्नल है, मैं नहीं देख पाऊंगा। ठीक है, मैं बायोलॉजी का जर्नल देख लूंगा, पलटूंगा, देखूंगा सब ये, लेकिन आई कैन नॉट, सो आई कैन रिकमेंड इट। ठीक है साहब, चेयरमैन ने साइन करके भेजा है, तो दैट विल बी एंड अप विद द। अब 4 साल उसने छापा पेपर, उसके बाद वो प्रोफेसर हो गया, उन्होंने जर्नल बंद कर दिया डिपार्टमेंट से। अब वो लिस्ट के आउट हो गया, जर्नल लिस्ट में ही नहीं जर्नल वो। तो नई लिस्ट जो आई रिवाइज, उसमें जर्नल गायब है वो। अब अगले बंदे ने देखा साहब ये तो जर्नल ही नहीं है। तो खाली ये प्रॉब्लम नहीं कि वो एप्लीकेशन के वक्त उसने जर्नल में था, उसका प्रमोशन हो गया या नहीं हो गया, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए जो जर्नल जो साइटेड है, नाम लिखा हुआ है, वो गायब है जर्नल उसमें से, वो कहाँ छापेगा वो। तो दीज आर सम इश्यूज व्हिच आई थिंक, या यू आर करेक्ट, दैट नीड टू बी rectified and bring it to the knowledge of the chairman UGC. देखिए कभी कोई मीटिंग शीटिंग होती है तो I'll put this thing and we should have something subject wise parameters होना चाहिए, इंडेक्सिंग होना चाहिए हमारी। ऐसा नहीं कि हम सबको एक ही उससे कंसीडर करें। या इसको तो हम अपने विद इन सब्जेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि जैसे साइटेशन में कुछ लोग बहुत करते हैं, मेरे 10,000 साइटेशन है, मेरे 10,000 है, मेरे 20,000 है। तो I said, don't compare with the citation, because citation depends on your personal work, and personal work is your work, and your work and my work is different. हो सकता है मेरा वर्क, तो इसका मतलब नहीं कि मैं क्वालिटी खराब कर रहा हूं। मैं जो काम मैं कर रहा हूं, हो सकता है वो और लोग, ज्यादा लोग नहीं कर रहे हैं। जो काम मैं कर रहा हूं वो 100 लोग कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं वो 1000 लोग कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपका साइटेशन बढ़ेगा, क्योंकि आपको साइट करने वाले 1000 लोग हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मुझे साइट करने वाले सिर्फ 100 लोग हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइटेशन की कम होगी मेरी। So this is obvious logical thing. So we should not compare two scientists or compare the two researcher with the on the basis of citations. ठीक है, आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी में आप काम कर रहे हैं अपनी फील्ड में, मैं अपनी फील्ड में काम कर रहा हूँ, डज नॉट मैटर कि मेरे साइटेशन 100 हैं कि आपके 1000 हैं। तो ये पैरामीटर्स जो हैं वो मेरे हिसाब से वो रिफ्लेक्ट नहीं करते आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क पे। इसीलिए मैं इसी बात को कहता हूँ कि हमें अपने क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, छपे पेपर कहीं पर भी, right? Try to publish in best of the best journal, but main focus should be on our
quality work which end up with some good publications. Of course, फिर उसका citation भी बढ़ेगा, वो सब चीजें बाई प्रोडक्ट है उसका. बेसिकली साइटेशन है, एच इंडेक्स है, I10 इंडेक्स है, ये सारा बाई प्रोडक्ट है आपकी क्वालिटी का. तो इसीलिए वो लोग बाई प्रोडक्ट से देखते हैं. बट दिस बाई प्रोडक्ट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फील्ड टू फील्ड. अब आपका मास कम्युनिकेशन में है, आप कहते हैं साहब मेरा साइटेशन 4000 है, मैं कहता हूं मैं बायोलॉजिकल साइंसेज में हूं, मेरा साइटेशन जो है 40,000 है. तो आप कहोगे मेरा तो बहुत कम साइटेशन है, क्योंकि मास कम्युनिकेशन में साइटेशन हो गई नहीं, सोशल साइंस में जनरली इतने साइट नहीं हो रहे हैं, तो बायोलॉजी में बहुत हो रहे हैं. तो I cannot compare my citation with you, and this is what going on in the colleges and the universities के scientists among scientists. अच्छा, इसमें कुछ लोग एजेंसीज ऐसी निकल आई हैं, उन्होंने क्या कर दिया है, मार्केटिंग और सारी चीजें अपनी सेल करने के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह, वो 2% टॉप 2% साइंटिस्ट की एक बीमारी शुरू हो गई है साहब. ये टॉप 2% साइंटिस्ट में नाम आ गया इनका, एंड दिस इज बेस्ड ऑन साइटेशन. अब टॉप 2% साइटेशन में साइटेशन किसी के 50,000 साइटेशन है वो ऊपर आ गया, और जिसके 10,000 साइटेशन है वो तो नीचे आ जाएगा. लेकिन 10,000 साइटेशन वाला काम बहुत अच्छा कर रहा है, वो बहुत हाई क्वालिटी की रिसर्च है उसकी. तो यू कैन नॉट कंपेयर दीज टू. सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इस पे कभी और बहस करेंगे. आज इतनी काफी है, बट ये कि वी सो द टेक होम मैसेज इज दैट वी शुड फोकस ऑन अपना क्वालिटी एंड वर्क, हाइपोथेसिस, गुड डिलीवरेबल, and try to get published in best journal as possible you can do it. Then rest of the things will be outcome. Citation है, H index है, कहाँ पर कितनी H index आप. अच्छा, H index पैरामीटर जो है वो एक्सपोनेंशियल होती है, वो ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ना ही बढ़ना है. इसी तरह साइटेशन है. साइटेशन ये हो सकता है कि इस साल साइटेशन थोड़े कम हो, लेकिन ओवरऑल साइटेशन इम्पैक्ट आपके कम नहीं होंगे. जैसे मान लिया आपके अगर आप आज की डेट में 4,300 साइटेशन है, तो कल 4,300 नहीं रहेंगे, 4,302 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं. ये नहीं होगा सर आपके 3,000 साइटेशन हो गए, है ना. इसी तरह एच इंडेक्स है, आपकी अगर एच इंडेक्स 10 है, 20 है, 50 है, तो कल को ये नहीं होगा आपकी घट के जो है 10 आ गई है, लेकिन हाँ क्वालिटी घट जाएगी. आज आपकी क्वालिटी बहुत हाई क्वालिटी का काम कर रहे हैं, कल को आपकी क्वालिटी डाउन हो सकती है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So we should try to make our pace continuous increment in the quality of research. So rest of the thing will be automatically will be improved and will be recognized. Thank you so much, sir. Thank you so much. Shall I close or any other question? If there's no question, I'm leaving. Thank you very much, sir. Asad sir, thank you very much Okay. for Okay, your very time. much. Thanks Thank a you, sir. lot. Thank you very much, sir. Thank you very much.